So I think now you will be able to see me better. So we were talking about Swan Singh committee. It was based on the Congress party's mandate and the fundamental duties which are there in the Indian Constitution. They are taken from erstwhile USSR Constitution. Obviously not taken as it is. The idea of fundamental duties is taken from there, because without rights there is no duty and vice versa. So the thing which I wanted to say is that 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 introduced fundamental duty. So my question is there any further amendment in the fundamental duties, or are they like as it is? There have been no change since 1976. So this is my question to you. By the way, in the original, like by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, 10 fundamental duties were added. So there was no part available, right? All the parts were taken. So a separate part was carved out for the fundamental duties purpose, and it is called as the Part 4A of the Indian Constitution. It comes after Directive Principles of State Policies, but it comes before the Union. And like in many countries, like it is explicitly mentioned. अब आप पूछोगे कि 1947 से 1976 तक इंडियंस की कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होती थी क्या? दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन विच पीपल माइट आस्क कि भाई हमारी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी 30 साल तक. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग टू से दैट, बिकॉज एक्सप्लिसिटली अगर मेंशन नहीं भी करो, फॉर एग्जांपल वर्ड सेक्युलर वाज नॉट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर. मतलब एनीवेयर इन द सेंस प्रियम्बल में मेंशन नहीं था. After it was introduced afterwards, but it does it mean that India was not secular to the starting? No. Answer is absolutely wrong, because we were secular in spirit all the time. We did not mention it explicitly, but anyway, if it is mentioned explicitly, it clears all the doubts further also. So similarly, fundamental duties, although they were not mentioned explicitly, they were later introduced just to remove any doubt, if anyone had any doubt ki whether they are part of the constitution or not. So Swan Singh committee said that like included a separate part 4A, Article 51A, all these things. Okay. So the Congress party also said that we did a historical mistake by not including it in the original constitution. So we are just like changing the constitution a bit to introduce it. Okay. And obviously like then uh, the answer is yet to come. So yes, the answer has come. That is the 86th Constitutional Amendment Act. Na 86th Constitutional Amendment Act introduced the 11th fundamental duty, which is like if you are a guardian or a parent, then you will provide education to your child or what as the case may be, if he is between 6 to 14 years of age. So you have to remember that this duty was added by 86th Constitutional Amendment Act of 2002. ठीक है. अब वो बोलते हैं कि यार अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आर द फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ और नो? So this is my question to you. In the meanwhile, like the committee's recommendations which were not included was they also wanted to say कि duty to pay taxes should be like fundamental duty of the Indians, but it is alas it is not, और अभी कोई पे भी नहीं करता. Majority of the people who pay taxes, just like a very small minority of Indians who should actually pay taxes. And like parliament should also make some laws या punishment provide करना चाहिए if you violate a fundamental duty, but anyway there is nothing like that right now, है ना? And like you cannot have so yes, so people are saying absolutely correct, except a few people, most of them are saying no. Yes, fundamental duties just like directive principles of state policies, they are not enforceable in court of law, they are not legally enforceable, they are not justiciable. तो फिर इनका पर्पज़ क्या है? क्या पर्पज़ है इनका? क्या सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये है कि मतलब आपके पास आपके पापा ने आपको बोला कि बेटा ठीक है आप मतलब हमारे घर पर रहते हो, और आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप पढ़ाई अच्छे से करो, आप मतलब अपने कैरियर में एक्सेल करो, बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ध्यान रखो. इट इज़ लाइक जस्ट लाइक दैट, इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी. अब वो क्या एक्सप्लिसिटली उसको लॉ थोड़ी बनाएंगे उस पर कि आपकी सैलरी का 20% पोर्शन आप अपने मम्मी पापा को दोगे. So that is like that cannot be a law, right? So that is why fundamental duties are also like not enforceable in court of law. Similarly they are just like a reminder, they are just like a reminder कि भाई तुम्हारे कुछ राइट्स हैं तो तुम्हारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, ना केवल नेशन के प्रति बल्कि लाइक आपके जो फेलो सिटीजन्स हैं उनके प्रति भी. उसके अलावा जैसे मान लो कि आपका कई लोग फ्लैग बर्निंग करते हैं, एफिजीज में फ्लैग बांध देते हैं या फिर बसों के आग लगा देते हैं. सो दे आर ऑल अगेंस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अगेंस्ट हैं, तो लाइक जो भी लाइक इट सर्व्स एज अ डिटरेंट टू एंटी नेशनल एलिमेंट्स. देन अगेन लाइक जब भी
आपको ऐसी कोई चीज़ मिले जो कॉन्स्टिट्यूशन में इट्स नॉट एनफोर्सेबल, इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल, इट इज़ नॉट लाइक इफ यू थिंक दैट उसका मीनिंग नहीं है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट देर इज़ अ कोर्ट। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रोल होता है कि आपका जुडिशियल रिव्यू करे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, बेसिकली आपको नहीं पता है कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन अच्छे से करता है, दैट इज़ द जॉब ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो जो जॉब करता है वो अपने अपने मन से तो करते नहीं है भाई कि आज मूड हुआ ये कर दिया। दे ऑलवेज डू इट इन लाइट ऑफ डी पी एस पीज फंडामेंटल ड्यूटीज। सो दे हेल्प इन बेसिकली interpretation of the constitution. Okay. And finally, fundamental duties per se, like they also like जैसे मोटिवेट करते हैं सिटीजन्स को, लाइक प्रोवाइड कि भाई हम जैसे मतलब मूक दर्शक नहीं है, मियर पार्टिसिपेंट नहीं है, वी आर ऑल्सो लाइक मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व है, मतलब इसमें मतलब वी आर नॉट स्पेक्टेटर्स कि हम मतलब मैच देख रहे हैं, बट वी आर लाइक एक्टिवली इन्वॉल्व इन फंडामेंटल ड्यूटीज़। एंड फाइनली जब भी कुछ होता है तो आप लॉ बना दो, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़। और द क्वेश्चन कि वो एनफोर्सेबल नहीं है, सो दैट गोज आउट ऑफ द पिक्चर। सो आई हैव मेड अ कोर्स ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़, आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो उसमें मैंने आपको स्टोरीज़ भी बता रखी हैं, एक मैंने वीडियो भी बनाया अलग से स्टोरीज़ का, जिससे आप ऑल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिमेंबर कर सकते हो। तो जस्ट टू लाइक रिसाइट आई से to abide by the constitution, respect its ideals and institution, national flag and national anthem first, cherish and follow noble ideals that inspired the national struggle for freedom 2, uphold, protect the sovereignty, unity and integrity of India 3, defend the country, render national service when called upon to do so 4th, promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, and to renounce practices which are derogatory to dignity of women, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. Okay, 7th is protect, improve natural environment including forests, lakes, river, wildlife, to have compassion for living creature. 8th is to develop scientific temper, humanism, spirit of inquiry and reform. 9th is to safeguard public property and to abjure violence. 10th is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. अब ये 10 थी जो ओरिजिनल थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से 11th ड्यूटी जो ऐड हुई है वो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 एज द केस मे बी। अब इसमें मजे की बात ये है कि 2002 में अमेंडमेंट आ गया था, लेकिन राइट टू एजुकेशन आने में आपके 7-8 साल और लग गए। आप समझ रहे हो, मतलब बिकॉज स्टेट डू नॉट हैव एनी रिसोर्सेज, सो इट कुड नॉट प्रोवाइड द गारंटी कि हम एजुकेशन देंगे ही देंगे। और ये आया तो आर्टिकल 45 भी अमेंड हो गया आपका। अब कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, इफ़ यू हैव टू आस्क like the single most important fundamental duties, single most important fundamental duty, okay, like अगर आपको एक फंडामेंटल ड्यूटी बताना होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रिटिसिज्म करते हैं इसका, इफ कैन यू टेल इट? ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि यार लीगली जस्टिसेबल ही नहीं है, इन्फोर्सेबल ही नहीं है, तो ऐसी सुपरफिशियल सी ड्यूटीज़ हैं, कोई पॉइंट नहीं है उसका। ठीक है, दूसरा ये है कि मतलब बहुत सारी ड्यूटीज़ कवर्ड नहीं है, मतलब जैसे कि आपका वोट डालना चाहिए, वो आपका राइट भी है तो ड्यूटी भी होनी चाहिए, आपको टैक्स देने चाहिए, ये सब कवर्ड नहीं है इसमें। ठीक है, और फिर मतलब बहुत ही ऐसे हाई फाई से वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो ओरिजिनली भी डाल सकते थे। हाँ, तो उसके बाद ये क्रिटिसिज्म हो गया आपका। सो फिर फाइनली अब इसका जो लास्ट पार्ट बचता है वो ये है कि विच आर द लॉज देयर टू एनफोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़। कैन यू प्लीज़ टेल मी विच आर द लॉज विच आर प्रेजेंट which will enforce the fundamental duties? So yes, like first is related to flag. Absolutely correct. So prevention of insults to National Honor Act. It prevents disrespect to the Constitution of India. This is the most important thing which you need to know. That is national flag and national anthem. दूसरा है कि मतलब जितने भी आपके जैसे आईपीसी में भर भर के हैं, मतलब जैसे भी आपका सेडिशन हो गया, सब कुछ हो गया, जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो सब कुछ हैं। फिर आपके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हैं, ये सब हैं, ये आपको एनवायरनमेंट वाला कवर कर लेता है। ठीक है, फिर आईपीसी वाला जो है, आईपीसी बोल देता है कि
ना केवल वो हैं, एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं तो फिर कम्युनल एसोसिएशंस भी प्रोटेक्टेड हैं, फिर सिविल राइट्स एक्ट के अंडर कास्ट रिलीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है। सो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मतलब बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ लॉज विच इंश्योर दैट फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एनफोर्स्ड। तो यही थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सब कुछ, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, सो यू डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट। तो बाकी कुछ फीचर्स होते हैं, मतलब दे आर बोथ सिविक ड्यूटीज़ एंड मॉरल ड्यूटीज़, कुछ सिविक होती है कुछ मॉरल होती हैं। एंड बेसिकली इंडियन वे ऑफ लाइफ को कोडिफाई कर रखा है। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ऑलवेज रिलेटेड टू सिटीजन्स, दे आर नेवर एक्सटेंडेड टू एलियंस। एंड फाइनली लाइक